ओके जी, तो मैक्सिमम लोग जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के वो लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, जो कि एक सही तरह बैठे हुए हैं। जो भी जैसे इवेंट लाइव जाएगा तो प्लीज काइंडली जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा लाजमी ऑन कर लें। मीनवाइल द स्पीकर इज आल्सो जॉइनिंग अस। Yes, it's okay. Taiba is here. So for the rest of you, Assalamu alaikum, Taiba. Walaikum assalam. How are Am you? I visible? Yes, you're visible. Okay, And for the rest of you guys, please guys turn on your cameras. Okay. So meanwhile, let me introduce you guys to our guest for today. We have with us Taiba, and Taiba is right now a student of or a doctor of physiotherapy, and she works as a social media consultant. Her main source of clients is LinkedIn, and she has generated a good number of leads from LinkedIn. And today she's going to share about the same with you guys. So thank you so much for joining us today, Taiba. Taiba is not a graduate yet. She is working while she's studying as well. So you're such a great inspiration for a lot of students here. So Taiba, I hope that we can make an impact today with this conversation. Thank you so much for joining us. Jazakallah, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for this introduction. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जिससे आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आप लोग की क्वेरी सॉल्व हो और आप लोग कुछ यहाँ से लेकर जाएं इंशाल्लाह. अच्छा, इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत अच्छे से कर दिया है, बट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू गाइस इस तरीके से सो दैट यू गाइस कैन हैव द आइडिया ऑफ द बैकग्राउंड plus why I am working on LinkedIn. Other than that, I will introduce you with the flow of this session, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम किस किस टॉपिक्स पे हम बात करेंगे एंड व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दिस सेशन. ठीक है, कहीं भी कोई क्वेश्चंस हो यू गाइस कैन नोट इट डाउन. आई विल कीप इट शॉर्ट क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, बट in the end I will try my best to take as much as questions I could so that you can ask that and I will answer at that time. So it would be a very nice session and I want it to be very interactive, right? I don't want just just to speak and just end the call. I don't want that. So we are going to have a fun on this inshallah. All right. जैसा कि आपको होस्ट ने बताया कि I have been graduating, but I started back in 2021 with Upwork. Basically, I started with content writing, but at that time I had like you can say difficulty in writing English, and you could say speaking in English. So I had problems in landing clients on Upwork, and I had that sense that I cannot work on a limited budget और विद लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी एजुकेशन नहीं थी कि अपवर्क पे हम कैसे काम कर सकते हैं एंड लाइक गाइडेंस चाहिए. आई डिड नॉट हैव दैट टाइप ऑफ गाइडेंस एट दैट टाइम. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इशू था. तो I don't know how, but I started documenting that experience. Let's say I got a very bad review. ठीक है, yeah, I have some difficulty in writing an article or any experience. I used to share that on my LinkedIn profile. So the thing is, I am a born writer. When I was in class 5, I used to like write in magazine and stuff. So my storytelling and the way I write content was a bit interactive and it would grab attention. So people start noticing me, and then there I got a boost on my LinkedIn profile. I'm telling you this because I know that not everybody have this type of a boost in the start. So what would they do? We will discuss that here. But just to give you an idea कि मेरा कैसे start हुआ था and how I started with the content writing. Then कुछ मतलब I needed to grow, so I switched from content to copy, and then now social media copywriting. And I have it's been like 4 years in that space, and on LinkedIn I guess many of you follow me there, but if you don't, you will like check my profile by the end of this call, and then you will have the idea कि हम किस तरह LinkedIn पे काम करते हैं. ठीक है, I think यहाँ तक introduction is enough. I want to know about you guys ki how many of you are beginner, how many of you are like just stuck, or you could say how many of you have a problem
in freelancing. Maybe I will have the idea कि हम किस audience पे बात कर रहे हैं, and then I will start the session from that point. So just go to the chat box and like drop any word or anything so that I could get the idea कि आप लोग किस किस्म के audience हो. आपने start कर लिए freelancing या कर चुके हो, clients नहीं मिल रहे हैं, कहाँ problem आ रही है, so that we will talk about this. Yes guys, please अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप हैंड रेज करके कुछ कहना चाहते हैं आप हैंड रेज करके भी कह सकते हैं. और जो क्वेश्चंस तैयबा ने पूछे हैं कि अगर आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया आप उसके बारे में बता सकते हैं, यू हैव स्टार्टेड और यू हैव अर्नड समथिंग और यू आर स्ट्रगलिंग इन स्टार्टिंग आउट, जो भी आपका स्टेटस है इस चीज के बारे में वो आप यहाँ लिखें. ओके, वी आर गेटिंग अ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस. ऑलराइट, सो सही है, लाइक ओवरऑल इशू यही है कि क्लाइंट्स नहीं मिल रहे एंड वी आर स्टक. ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं. सही है. अब नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद लिंक्डइन, क्योंकि आई नो कि मेनी ऑफ अस हैव स्टार्टेड ऑन अपवर्क, फाइवर, वहाँ क्लाइंट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, एंड देयर इज लाइक वेरी लिमिटेड स्पेस. आपके पास एक क्राइटेरिया होता है एंड लाइक यू आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. मुझे आपका आइडिया नहीं है, बट व्हेन आई स्टार्टेड बैक देन आई हैड दैट इशू कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी, मुझे अपनी मर्जी के क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे. तो हम आते हैं लिंक्डइन पे. अच्छा, लिंक्डइन पे जब आप स्टार्ट करते हो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको अदर देन स्किल आपके पास होनी चाहिए. अब क्या क्या होनी चाहिए, वी विल हैव टू लर्न दैट so that you will close client. It's not like that कि आप LinkedIn पे start करो and you just start posting anything or content and then you will just wait for the client and you get the project. ऐसा नहीं होता है. So there are some certain format or you could say a road map आपको follow करना है other than your skill set. Then जाके you will be able to close clients. अच्छा, clients की हम कैसे बात करें जो high ticket clients होते हैं. Now you have the option कि आप किसके साथ काम कर सकते हो. आपका like many of you are beginner, तो I would never say कि आप बिल्कुल expert level पे काम करो. You I know that कि आप इस लेवल पे काम नहीं कर सकते हो. तो जो आपका क्या कहना चाहिए, आपकी जो एक्सपीरियंस लेवल है हम उसी पे बात करते हैं. अच्छा, when you have your LinkedIn profile, अब आप वहाँ पे जैसे कि आप many of you are content writer, copywriter or in graphics, video, whatever your skills are, no matter what, like whatever you do, आपने करना ये है, you have to create the content that will attract client. अब हमने content को classify कर लेना. There are two types of content, one that attract and the second one is that converts. Sales driven content हम जिसको कहते हैं. तो आपकी जो LinkedIn प्रोफाइल पे जो आपका कंटेंट होगा, इट शुड बी फॉलो दिस टू इंटेंट. ठीक है. कंटेंट जब मैंने स्टार्ट किया था, एज आई मेंशन कि मैं स्टूडेंट थी एंड आई नो मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट और स्टिल लाइक इन ग्रेजुएशन. तो और आपके पास कुछ है नहीं पोस्ट करने के लिए, आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो थॉट्स नहीं है, तो व्हाट वुड यू डू? द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी लाइक आई डिड. ठीक है. लेट्स से कि somebody said कि मुझे clients में issue आ रहे हैं, which means कि he started closing और he started क्या कहना चाहिए उसको client acquisition, but clients नहीं मिल रहे. तो clients क्यों नहीं close हुए? बजट का प्रॉब्लम है, skills उस क्राइटेरिया पे नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हुई? You guys can post the same thing on your profile. जब कोई आपको देखेगा, they will read it, maybe they will help you. ठीक है. नहीं तो people will have the idea कि yes this guy is active, this guy is doing this stuff और इसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, whatever. मतलब आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ जब बात करोगे, people will remember you and whenever they need you they will come back to you. अगर ऐसा नहीं तो they will refer you. Most of my clients मेरे जो रेफरल बेस होते हैं, I have never done client acquisition के खुद से like मैसेज भेजना कि I need work, मैंने आज तक नहीं किया. It's been like 4 years. तो what I did the content. तो सेम आपके लिए कंटेंट की क्वालिटी टॉप नॉट होनी चाहिए. अब I will not go deep in what type of content, कैसा content कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट, क्योंकि I know there is so much to talk about. There is like plenty of stuff that we can discuss. But I will give you the templates, I will give you the overview और आप उसको जाके टेस्ट करोगे. आप उन लोगों को जाके देखोगे जिनका मैं नाम लूंगी and you will I would say follow this और replicate करोगे अपने लिए. ठीक है. थोड़ा सा अपने लिए कस्टमाइज करके and on यहाँ पे let's take a question. Malaika has raised her hand. Yes, Malaika, please. Yes, Malaika, you have raised your hand. आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकती हैं. मैम सॉरी, एक्सीडेंटली तौर पर ना टच हो गया था.
Okay, okay, no problem. I thought you had a question. Okay, perfect. Yes, Taiba, you can continue. All I right. hope I'm pronouncing your name right. Is it Taiba, right? Yeah. Okay. अच्छा, कमिंग बैक टू द कंटेंट स्टफ, हमने कंटेंट मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट करना है जो भी आपकी जर्नी है, वॉट एवर यू आर लर्निंग। अच्छा, अब देखो, हम जब लिंक्डइन पे बात करते हैं ना, जैसे हम बात करेंगे हम वैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बिगनर हो जाते हो तो यू विल अट्रैक्ट बिगनर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना चाह रही हूँ इस तरह के, आपकी पोजीशनिंग लिंक्डइन पे मैटर करती है। व्हेन आई से डॉक्यूमेंटिंग स्टफ, इट डजंट मीन कि आप कुछ भी मतलब पोस्ट कर दो एंड यू स्टार्ट प्लीज हेल्प मी और एनीबॉडी हु हैज जॉब, इस तरह की जिस तरह हम देखते हैं। आप जैसे कंटेंट डालोगे फिर आप उसी क्वालिटी के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये है कि हम अट्रैक्ट करेंगे पीपल हु शुड हायर अस। कौन से, फॉर इंस्टेंस somebody here is social media or somebody here is in what could we say SEO, ठीक है। तो हम किन लोगों के लिए बात करेंगे, हम बात करेंगे हेड ऑफ मार्केटिंग के लिए, पीपल हु नीड पीपल लाइक अस, उन जिनको हमारी सर्विसेज की नीड है, हम उनके लिए बात करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे, हम उनके पेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हेन वी आर डॉक्यूमेंटिंग स्टफ, कीप दैट इन माइंड कि हमारी जो कनेक्शंस बिल्डिंग हो रही है, हमारी जो नेटवर्किंग बन रही है, दैट वुड बी अराउंड दोज पीपल या दोज ऑडियंस। The more high quality content, the more high quality what could I say, the more high quality actions you will follow on LinkedIn, the more quality audience you will attract. It is just simple as that, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि क्या पोस्ट करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मेट क्या ये क्या, doesn't matter unless and until you are clear on your goals, on your what could I say, on your mission, और आप क्लियर हो अपनी वैल्यू पे और उस बात पे क्लियर हो कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या वैल्यू देते हो, दैट इज इनफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं कितने क्या लेट से क्या बजट है जिसपे मैं सेटिस्फाई हूँ। हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, पोजिशनिंग, क्लाइंट्स, हम इसको एंड में डिस्कस करेंगे। बट जस्ट फॉर द बेस कि आपकी मैं फंडामेंटल सेट कर दूं, बी क्लियर ऑन योर वैल्यूज। आपकी फ्रीलांस वैल्यूज क्या है? ऐसा नहीं है कि आपने जब स्किल सीख लिया एंड देन यू जस्ट स्टार्टेड हंटिंग क्लाइंट्स, ऐसा नहीं मिलता। क्लाइंट्स अगर मिल भी जाए तो यू विल नेवर ग्रो, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि फ्रीलांसर इतनी तेजी से ग्रो होते हैं, वो ऐसे ग्रो नहीं होते, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ डिसीजंस इन देयर क्या कहना चाहिए आप, उनका जो वर्क एथिक्स है उसमें। तो आपने भी सेम ऐसे करना है, ठीक है। इवन इफ यू आर बिगिनर, आपकी जो रोड मैप होना चाहिए या आपका जो वे ऑफ मोड, जो आपका मोड होना चाहिए, मोड ऑफ फ्रीलांसिंग, इट शुड बी वेरी इन एक्सपर्ट मोड या फिर वेरी हाई क्वालिटी, सो दैट यू विल अट्रैक्ट हाई क्वालिटी क्लाइंट्स। आई होप यहाँ तक की जो मेरी स्टेटमेंट है, या मैं इसको रिकैप कर दूं, ये आपको क्लियर होगी कि एज अ बिगिनर भी योर पोजिशनिंग शुड बी एज एन एक्सपर्ट। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि यू स्टार्टेड पोस्टिंग स्टफ दैट यू डोंट मीन कि मैं ऐसा हूँ या मुझे इतना एक्सपीरियंस है या आई नो दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। Yeah, but how about let's make it interactive. For example, यहाँ पे लारेब ने एक बात की कि how what is the role of AI in this? For example, आपने देखा है कि अभी recently on LinkedIn we see a lot of you say critiques regarding AI generated content. Or for someone who is not targeting the content clients, somebody who is a designer, for example, and he wants to target the designer market, designer the clients who want to hire designers, उन्हें उनको target करना है। अगर इस तरह के लोग अपने क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए, लेट्स से इफ दे आर यूजिंग एआई टू जनरेट लिंक्डइन पोस्ट, व्हाट डू यू रेकमेंड टू देम? डू यू से कि उनको करना चाहिए, एंड इफ दे आर डूइंग, व्हाट दे शुड चेंज, और हाउ शुड दे क्रिएट कंटेंट फ्रॉम एआई, यूजिंग एआई? राइट। अच्छा देखो, एआई इज नॉट योर एनिमी, ठीक है। एआई को मैं कभी नहीं कहूंगी कि डोंट यूज चैटजीपीटी, डोंट यूज जेमिनी, डोंट यूज क्लाउड, यू शुड यूज इट। अब करना कैसे, तरीका आना चाहिए। अभी जो राइट नाउ जो लिंक्डइन पे हाल हुआ है, द सैचुरेशन, द कंटेंट वी सी, इट्स आई वुड से पैथेटिक। ये सिर्फ फ्लफ है कि कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट वुड जस्ट गैदर फॉलोअर्स, आपको अटेंशन मिल जाएगी, दैट्स ऑल। क्लाइंट्स नहीं आते इस तरीके से। तो इफ यू आर आस्किंग रोल ऑफ एआई, यू शुड नो हाउ टू यूज एआई। आपको प्रॉम्प्टिंग आना चाहिए, आपको एआई से काम निकालना आना चाहिए। एआई पे डिपेंड होना और एआई से काम लेना है, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। आप इसको इस तरह कंसिडर कर लो कि लेट्स से आई एम रनिंग एन एजेंसी, सो आई एम द ओनर एंड आई हैव एम्प्लॉइज। तो इट्स अप टू मी कि मैं अपने टोटल अपने क्लाइंट्स कह रही हूँ, एम्प्लॉइज पे डिपेंड हो रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह भी काम कर रहे हो, लाइक आपके ऊपर डिपेंड हो गई मैं।
या एज एन ओनर मेरा काम है कि मैं अपने एम्प्लॉय से सही से काम लूँ, मैं उनकी स्किल्स को समझूं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है मैं उनको समझूं, मैं उनकी एक्सपर्टीज को समझूं और फिर मैं उससे काम निकलवाऊं। तो if I depend on my employees to get the work done, you can say कि जो क्वालिटी होगी, जो आउटकम्स हैं, जो वैल्यू मुझे मिल रही है, that will not up to the mark, जिससे मैं क्लाइंट क्लोज करूंगी। अगर मैं एम्प्लॉयज को समझती हूँ और फिर मैं उनको उन तरीके से लेकर चलती हूँ, दैट विल हेल्प मी टू डिलीवर द वर्क अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सेम इसको एआई से रिप्लेस कर लो कि एआई पे डिपेंड नहीं होना, एआई से काम निकलवाना है। सो यू शुड बी Exactly. या यू शुड बी वेरी क्लेवर अबाउट इट। और इसके लिए प्रॉम्प्टिंग समझो। अगर मैं अपनी बात करूं, आई यूज एआई, आई वुड से 24/7। ChatGPT जो है मेरे ब्राउजर पे हर वक्त ओपन रहता है, बट इसका बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं को मुझे पोस्ट लिख कर दे दो, नेवर। लेट्स आई हैव टू टॉक अबाउट some topic, I would brainstorm that in my mind. I will outline the post, I will set the tone कि मेरी टोन क्या होगी, मुझे वर्ड्स कौन से यूज करने हैं, मेरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, anything that revolves around the post। मैं उसको पहले एक ड्राफ्ट बनाऊंगी एंड देन आई विल फीड इनटू एआई लाइक चैट जीपीटी। सही है। अच्छा, मेरा जो मैं आप तरीका करने का बता रही हूँ, व्हाट आई डू, मेरे कुछ प्रोफाइल्स हैं या कुछ क्रिएटर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, उनका टोन, उन जिस तरह वो लिखते हैं, जिस तरह वो डेप्थ में जाते हैं, जो उनकी थॉट लीडरशिप्स है, जिस तरह वो लाइक अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, आई लव देम, जो उनका जिस तरह का काम है। तो व्हाट आई डू, मैंने उनके सैंपल्स बनाए हुए हैं, या आपके लिए स्वाइप फाइल कह लो, या स्क्रीनशॉट्स रखा हुआ है, कुछ भी डेटा रखा हुआ है जो उनके बेस्ट वर्क है, या जो भी मुझे उनका बेस्ट समझ में आए स्टेटमेंट जो भी। व्हाट आई डू, मैंने अपनी कस्टम चैट जीपीटी को या एआई जो भी मैं प्रॉम्प्टिंग कर रही हूँ, आई विल फीड दैट कि हियर आर दोज सैंपल्स, या हियर इज अ क्रिएटर। लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एलेक्स होमोजी को ले लिया, तो आई वुड से कि मैंने पूरे उसको प्रॉम्प्टिंग कर दी कि आई एम राइटिंग ऑन दिस। अच्छा, चैट जीपीटी की ना एक मेरे पास शीट है, आई विल शेयर दैट इन अ वाइल। उसमें है कि दे आर लाइक द वे यू प्रॉम्प्टेड। तो उसमें होता है कि आप बताओ कि बिफोर आफ्टर, अभी मेरा ये पोस्ट है, मैं उसको ऐसा दिखना चाहती हूँ, या आपका रोल बताओ, तो क्या आप ये रोल बनाओ कि चैट जीपीटी को अगर लेट्स से यू आर सोशल मीडिया कंसल्टेंट, तो डोंट राइट इट जस्ट सोशल मीडिया कंसल्टेंट, राइट सोशल मीडिया कंसल्टेंट फॉर B2 companies who make dash dash dash, इस तरह करके, like the more specific you are, the more specific results you will gain। तो उस तरह करके Yeah, Deba, what would you recommend for people like who are documenting for the first time? For example, for someone who has just, for example, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने अभी कोई कोर्स जो है वो कंप्लीट किया ऑन फ्रीलांसिंग, ठीक है, और वो बिल्कुल बिगिनर है, इसका मतलब है दे जस्ट हैव टू स्टार्ट, तो दे हैव टू मेक देयर फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। सो व्हाट डू यू रेकमेंड अपनी फर्स्ट पोस्ट में? जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, आपने बताया भी कि हम बिल्कुल अगर बिगिनर वाली चीजें पोस्ट करना शुरू कर देंगे, आई जस्ट लर्नड दिस एंड लर्नड दैट, तो हम बिगिनर ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो लोग खुद भी सीख रहे हैं उनको, इंस्टेड ऑफ क्लाइंट्स। लेकिन हमें तो चाहिए क्लाइंट्स, और लिंक्डइन का बेसिकली मतलब भी हाई टिकट क्लाइंट्स होता है। तो उन लोगों को जिन्होंने फर्स्ट पोस्ट करनी है, व्हाट डू यू रिकमेंड कि उनकी फर्स्ट पोस्ट क्या होनी चाहिए? राइट, गॉट यू। अच्छा देखिए, बिफोर आई कम ऑन दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा बैक पे जाके ना कंटेंट स्ट्रेटेजी को समझते हैं। व्हेन इवन इफ यू आर बिगनर, और आप बिगनर पे लेवल पर आकर इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइंट्स और तो कंटेंट, जैसे मैंने बताया था, सेल्स ड्रिवन कंटेंट होता है, अटेंशन का कंटेंट होता है। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आपने अटेंशन ग्रैब करनी है, पहले आपने ऑडियंस नेटवर्किंग कनेक्शन लेनी है। मैंने इवन इवन व्हेन मैं जब कंसल्टेशन कॉल्स लेती हूँ, जब मैं वन कॉल्स लेती हूँ, उनको भी, जब मैं अपने क्लाइंट्स ले रही हूँ तब भी मैं उनको बोलती हूँ कि लिंक्डइन पे पहले महीने किसी को क्लाइंट नहीं मिलता, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स, अगर आपको लाइक रिटेनर्स चाहिए, यू हैव टू पुट 6 months एटलीस्ट ऑन लिंक्डइन। अब मैं आती हूँ कि हमें फर्स्ट पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट पोस्ट, इट शुड नेवर अबाउट योर वर्क और योर कुछ भी सकेगी। there is a type of content, top of funnel, middle of funnel, and then bottom of funnel। तो for top of funnel you will do storytelling। तो जब आप फर्स्ट पोस्ट करते हो, आपको रखना है कि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। यू विल अट्रैक्ट पीपल देयर। जब आपके पास पीपल होंगे, देन यू विल कन्वर्ट देम, फिल्टर देम इनटू योर क्लाइंट्स, ठीक है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, या आप क्लाइंट को क्लोज कैसे करोगे? ये बहुत एक्सेप्शनल केस है कि आप इतनी कोई एक्सपर्ट किस्म के, एक्सेप्शनल हाई क्वालिटी एक्सीलेंट किस्म की आप पोस्ट रखो, लिखो, उसके बाद जाके आपको लाइक विदाउट वर्किंग टू मच आपको मिल जाए क्लाइंट। देयर आर पीपल जो बहुत इंस्टेंटली वायरल हो जाते हैं, बट इट्स वेरी एक्सेप्शनल केस। बट आप बिगनर हो, तो फॉर बिगनर जब आपकी पहली पोस्ट होनी चाहिए, इट शुड बी स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग क्या होनी चाहिए? देखो, लिंक्डइन पे ना आपने हर जगह पढ़ा है,
पर्सनल ब्रांडिंग हर कोई कहता है, बट इसको थोड़ा ना आप अंडरस्टैंड करो कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स, मुझे इतनी रीच मिली, इतने फॉलोअर्स मिले, या मेरा ये है वो, नो। पर्सनल ब्रांडिंग मीन्स कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको जानती है, दे नो यू, दे रिमेंबर यू ऑन योर पर्सनल लेवल। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ ना, यू विल सी कि ताइबा इज टॉकिंग अबाउट पेट्स, ताइबा पेट्स के बारे में बात करिए, यू विल सी कि ताइबा इज टॉकिंग अबाउट हर फैमिली, ठीक है, ताइबा इज टॉकिंग अबाउट हर स्ट्रगल्स। मैं फ्रीलांसिंग कर क्यों रही हूँ, मुझे स्किल पसंद क्यों है, मुझे कॉपी राइटिंग पसंद क्यों है, मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट ने अट्रैक्ट क्यों किया, ठीक है। यू विल सी स्टफ दैट विल व्हाट कुड आई से, दैट विल पोजीशन मी कि पीपल विल रिमेंबर मी, इस तरीके से। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आपने पहली जो रखी है, मैंने पोस्ट भी की थी कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन लिंक्डइन, फोकस मोर ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग। जब आपकी कम्युनिटी होगी, यू विल, it will be easier for you to convert those people into your clients, ये आपके लिए आसान होगा। तो for when you are starting, start attracting people। people कौन, एज आई मेंशन, एजुकेशन नहीं देनी है अपनी स्किल्स के ऊपर, कि आप फॉर इंस्टेंस मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, 3 टिप्स टू डू दैट, 3 टिप्स टू डिजाइन लाइक दिस। अगर आप इस तरह करोगे तो आप ग्राफिक डिजाइनर्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो व्हाट वुड यू डू, आप बताओगे कि आप कैसे करते हो, ठीक है, हाउ आई डू दैट, सही है, या व्हाई आई डू दैट, हाउ आई लर्न अबाउट इट, ठीक है, मैंने डिस्कवर कैसे किया, मुझे क्या पसंद है, ठीक है। टॉक अबाउट यू, टॉक अबाउट योर कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब आईसीपी, जो भी आपकी आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल है, दैट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस दिस इज यू, दिस इज योर क्लाइंट, तो इन द मिडिल जो आपको कंटेंट है, इट शुड अटैच यू बोथ, सही है, एंड इट वुड बी योर फर्स्ट पोस्ट, और उसके बाद भी जो, तो योर फर्स्ट पोस्ट कुड बी स्टोरी टेलिंग। जब आपने अट्रैक्ट कर लिया, देन मैं आगे, चलो मैं हाथ के हाथ बता देती हूँ। जब आपने स्टोरी टेलिंग कर लिए, यू हैव पीपल, यू विल सी कि अच्छा एंगेजमेंट आ गई है, पीपल आर एंजॉयिंग, पीपल आर लाइकिंग, पीपल आर फॉलोइंग, तो इसका मैं क्या करूं, देन यू स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट योर वर्क, ठीक है, थोड़ा डीप में जाके कि हियर इज व्हाट आई वर्क लास्ट वीक, ठीक है, या मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, anything that will represent के let's say there is this guy named Mullah in my screen, तो मैं कहूंगी कि कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं लिखे कि क्लाइंट अगर रीड कर रहा है या ऑडियंस जो भी उसने बिल्ड की वो रीड कर रहे हो, दे वुड रिमेंबर या दे वुड लर्न कि अच्छा ये ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, अच्छा ये इस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, क्योंकि दे लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत कुछ है। तो आपको अपनी क्लैरिफिकेशन के साथ डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी है सिंस द बिगनिंग, ठीक है। Perfect. अच्छा, यहाँ पे ना जस्ट टू क्लोज दैट क्वेश्चन, जब आप डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करो या जब आप पोस्टिंग स्टार्ट करो, मैंने पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया था, इट शुड बी वेरी क्लियर। आप बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो यू शुड हैव द ऑफर, ठीक है। आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप देयर इज दिस फॉर्मूला, व्हाट यू डू फॉर होम, व्हाट मेथड यू यूज, जो फ्रेमवर्क होता है, जो भी लाइक आई डू कॉपी राइटिंग, तो कॉपी राइटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, आई डू सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस आई यूज, किसके लिए मैं यूज करती हूँ, ठीक है, एंड व्हाट इज द आउटकम। तो यहाँ पे आपको 5 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक लेट्स से आई हैव इरफान ने वीडियो एडिटिंग सीखी और ही जस्ट स्टार्टिंग वीडियो एडिटिंग, और उसको खुद नहीं पता है कि मैं बहुत सारी लाइक इंक्वायरीज आ रही हैं या कंटेंट किस लिए बनाऊं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब आप स्टार्ट में सही से एक्सप्लोर कर लो, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिएटर्स को देखो, वीडियो एडिटर्स को देखो, जो भी आपकी स्किल है उसके बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिएटर्स को जाके देखो, वो क्या करें, विच स्किल एंड व्हाई इट इज लाइक हाई इन डिमांड, मार्केट में क्यों इसकी लाइक डिमांड चल रही है। तो जब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम इस चीजों को एक्सप्लोर करने में, यू विल गेट टू नो। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं, आई वुड से कि जो आपकी 5 फिंगर्स हैं, आपके पास एक जगह नोट डाउन होनी चाहिए। मेरे पास हर 6 महीने बाद ये नोट डाउन होती है, मैं इसको चेंज करती हूँ। जब हमें ग्रो करना होता है, वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू अपडेट अवर, मैंने लेटेस्ट पोस्ट भी की है, यू गाइस कैन आफ्टर द कॉल यू गाइस कैन चेक माय प्रोफाइल, तो यू वुड नो कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। तो जस्ट फॉर क्या कहना चाहिए इन अ नटशेल, यहाँ पर आपके पास आपकी ऑफर होनी चाहिए, आप किसके लिए काम कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, एंड आउटकम क्या होगा उसका, ठीक है। तो ये आपके पास ऑफर बनी होनी चाहिए। जब आपके पास ये ऑफर होगी, यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कंटेंट अराउंड इट, ठीक है। आपके पास कंटेंट पिलर्स होंगे, तो जब आपके पास ये सब चीजें हो जाए, यू विल क्लासीफाई योर कंटेंट पिलर्स। फॉर इंस्टेंस मेरी बात करो, मेरा जो प्रोफाइल है लिंक्डइन का प्रोफाइल, मेरा मेरे 3 गोल्स हैं। नंबर 1 क्लाइंट्स देना, क्लाइंट्स किसके लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए। नंबर 2 1-on-1 कंसल्टेशंस देना,
किसके लिए? फ्रीलांसर्स के लिए, बिगनर्स के लिए। नंबर 3, सोशल मीडिया की कंसल्टेशन लेना क्लाइंट्स के लिए, जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते $1000 बट उनको आइडिया चाहिए कि हम खुद से कैसे काम करें अपने पेजेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उनको कंसल्टेशन लेना। तो यानी कि मेरे 3 आउटकम्स है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अब मैं इन 3 के कंटेंट क्लियर निकालूंगी। थॉट लीडरशिप के कंटेंट, फ्रीलांसिंग में हमारे पास स्ट्रगल्स होती हैं, क्लाइंट्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग होती है, नेगोशिएशन होते हैं, स्कैम होता है, ये सारे मेरे कंटेंट क्लियर है। ठीक है। 1-on-1 कॉल्स में जैसे आप लोग जितनी भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये एक क्वेश्चन आई हैव डन स्पीकिंग ऑन इट ऑन लाइक पर्सनल लेवल, एक बंदे के साथ 1-on-1 कॉल करके। तो इन पे मैंने बात की एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। क्लाइंट एक्विजिशन स्टक हूँ, हाई Okay. रेट मिल रहा है, Taiba, ऑल so ऑफ। let's move to the next question. I think हमने इस पे काफी बात कर ली। मैंने या आपका रीसेंट पोस्ट देखा था जिसपे आपने बताया था कि जिसमें आपका रीसेंट पोस्ट मैंने भी देखा था कि जिसमें आपने बताया था कि कंसल्टेशन जो है लॉट ऑफ पीपल दे वांट फ्री कंसल्टेशन, दे डोंट वांट टू पे फ्रीलांसर्स। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे तुबा सोलंकी ने पूछा भी हुआ है कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट क्लाइंट्स मीट बट दे गेट द वर्क डन एंड देन रन अवे। तो हम क्या करें इस केस में? क्योंकि आपने देखा कि लिंक्डइन पे तो कोई पेमेंट वेरिफिकेशन का मेथड नहीं है अनलाइक अपवर्क एंड फाइवर, हालांकि वहां पर भी स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन लिंक्डइन पर तो बिल्कुल भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए नहीं है। तो हम ये चीज कैसे वेरीफाई करें? और अगर हमें कोई चीज बंदा इस तरह से काम दे रहा है, उसे करके भी दे रहे हैं, तो किस तरीके से वेरीफाई किया जाए? या अगर कोई आपके somebody is not paying you after you have done the work for them, what should you do in that case? ठीक है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन इसको इस तरह कर लो, देयर आर 3 वेज आप बच सकते हो स्कैम से या लो पेइंग क्लाइंट से। ठीक है। नंबर 1, अब चार्ज अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब एडवांस पेमेंट आपने चार्ज करनी है। लेट्स से हमने $500 के क्लाइंट क्लोज किया है, एट दिस स्टेज आई चार्ज 100% अपफ्रंट। लेकिन जाहिर सी बात, वो आप लोग बिगनर्स हो, क्लाइंट भी नहीं देते, तो एटलीस्ट 10% ऑफ इट, 20% ऑफ इट, इस तरह करके आपने अपफ्रंट चार्ज करना है। ठीक है। नंबर 1 ये। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस 500 में से उसने $20 आपको दे दिए, अब बाकी के $480 कब देगा? तो व्हाट पीपल डू, जो मिस्टेक है, दे एक्सेप्ट कि हम पेमेंट आफ्टर दी प्रोजेक्ट लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना। क्लाइंट से जब आप बात करो, आपने बताना है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यू विल डिपॉजिट दिस अमाउंट, लेट्स से $50। ठीक है। यू विल डिपॉजिट इट। फिर आफ्टर 10 डेज या इन लाइक बिफोर द प्रोजेक्ट एंड्स, आपने उसकी जो बकिया पेमेंट है आपको क्लियर करानी है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरी साइकिल रन होती है, आई टेक अपफ्रंट राइट नाउ 100%, बट इफ आई वर यू, आई वुड टेक लेट्स से $10 मैंने ले लिए। अब उस प्रोजेक्ट पे काम करने में मुझे 7 डेज लगते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 5th डे और 6th डे आई विल आस्क हिम टू क्लियर द पेमेंट टू गेट द वर्क। ठीक है। लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले अपनी पेमेंट्स को क्लियर कराना है। प्रोजेक्ट के बाद जो होता है कि आप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट लेके भाग जाए, या यू नो ऑल दैट सर्कमस्टेंसेस दैट कुड हैपन, तो ट्राई टू क्लोज दैट अमाउंट बिफोर द प्रोजेक्ट एंड्स। ये टिप है। सही है। पीपल नो हाउ टू चार्ज एडवांस, बट दे डोंट नो हाउ टू टेक फुली 100% पेमेंट बिफोर सबमिशन। तो इस तरह कर सकते हो आप कि आप एडवांस पेमेंट चार्ज करो, अपफ्रंट पेमेंट चार्ज करो। जब आप आगे जब आप आगे थोड़े ग्रो जाओगे, यू विल स्टार्ट चार्जिंग नॉट फॉर 1 मंथ, बल्कि जैसे लेट्स से 3 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो यू विल चार्ज फॉर 3 मंथ्स, जो भी आपका चल रहा है। बट द बेस्ट आई कुड से, और इससे अलावा कोई भी हल नहीं है इस बात का कि आप एडवांस चार्ज नहीं करो। एक और हो सकता है दैट आई डू, जब आप क्लाइंट्स को मीटिंग पे लेकर जा रहे हो, तो द मीटिंग इज पेड। ठीक है। तो जो पे करेगा वही सीरियस है, इसका सिंपल सा मतलब है। तो इफ देयर इज समबडी हु इज विलिंग टू पे यू फॉर द मीटिंग टू डिस्कस, तो वो आपके साथ सीरियस है, सीधी सी बात है, तो दे कुड पे यू। बट बिगनर लेवल पे कंसल्टेंसी कह लें और कंसल्टेशन कह लें और मीटिंग पे करना, इसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जस्ट सिंपल एज दैट, चार्ज अप एडवांस, नथिंग बिफोर दैट। Exactly. I was about to say the same thing because I had a couple of experiences जहाँ पे Fiverr पे और Upwork पे you get a lot of free consultations from top experts, level 1, level 2 sellers के लोग जो है developers जो है specifically, वो free आपको video consultations दे रहे होते हैं just to see your project, they let you know कितने time में हो जाएगा and you can book this gig and you can book that gig. So basically it's like a consultation जिससे आप manipulate भी हो जाते हैं कि yes we should get this person, he knows the header या जो भी, अगर आप bug fixing करवा रहे हैं कुछ भी। लेकिन जब लोग बिगिनर होते हैं, ऑफ कोर्स उनको कोई भी कंसल्टेशन के लिए पे नहीं करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको फ्री कंसल्टेशन देनी चाहिए? बिकॉज उसी से तो वो अपने स्किल्स को प्रूव करेंगे कि मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया, इफ यू वांट टू गेट दिस डन आई विल प्रोवाइड यू दिस वर्क इन दिस टाइम फ्रेम। व्हाट डू यू से अबाउट इट देवा? एज अ बिगिनर आई वुड डेफिनेटली से कि आप कंसल्टेशन जो पेड
करो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पोजिशनिंग आपकी एक्सपर्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास पेड एक एज एन ऑफर होनी चाहिए। जब आपके पास क्लाइंट आया है, आप उसको इस तरह बिल्कुल नहीं कि क्लाइंट कह रहा है आई एम इंटरेस्टेड इन या व्हाट यू डू, कुछ भी वो आपसे पूछे और आप फौरन से उसको लिंक भेज दो कि भाई बुकिंग कर लें। इवन मेरे पास भी है, आई डोंट डू दैट। थोड़ा सा क्लाइंट को नर्चर करना पड़ता है, ठीक है, क्लाइंट को इम्प्रेस करना पड़ता है, उसका माइंड बनाना पड़ता है कि किस तरह हम जो है उसको जब मीटिंग पेड का बोलें तो वह उसको इंस्टेंटली यस है, सही है। तो नर्चर जब आप चैट पे हो, कन्वर्सेशन पे हो, कम्युनिकेशन सीखो, इस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि किस तरह उसको नर्चर करते हैं। नर्चर करने के बाद यू विल गेट हिम द लिंक और वो आपको बुक कर ले। अगर वो नहीं करता लेट्स से, तो इट्स नॉट लाइक आप उसको क्लोज नहीं करो, क्योंकि आप बिगनर्स पे हो, बिगनर्स को वैसे, बट मैं भी कभी बिगनर को नहीं पे करूंगी। तो आप चैट पर ही लिमिटेड किस्म की डिस्कशन कर लो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप 10 15 20 मिनट आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजीज बता दी और वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैं आपको एक बेस्ट टिप दूं जो मुझे हमेशा काम की गई है। यू टेक द लीड, यू टेक द चार्ज ऑफ योर कन्वर्सेशन। आप अगर शुरू से ही द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशन आप अपने आप को एज अ पोजिशन थॉट लीडर, एज एन एक्सपर्ट आप पोजिशन करते हो और अपनी उस कन्वर्सेशन का, क्लाइंट का चार्ज लेते हो, you are 80% close to close at client without being scammed या ghosted, सही है। आपके पास लीड होनी चाहिए, तो यू शुड नो कि मैं क्लाइंट से कैसे बात करूं, बजाय कि क्लाइंट आपसे पूछे व्हाट यू चार्ज, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट। इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं, अवॉइड टॉकिंग टू देम। आई डोंट टॉक विद सच पीपल जो पूछते हैं कि मुझे क्या आउटकम मिलेंगे, जब आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए तो फिर हमारे पास क्यों आए, सही है। तो इस तरीके से क्रॉस चेकिंग करना सीखो कि किस तरह क्लाइंट्स को फिल्टर करते हैं, क्राइटेरिया बनाओ अपना। जब मैं ऐसे ऑफर की बात करी थी कि मैं किसके लिए काम करूंगा, तो वो आईसीपी में आ जाता है और आप उसको एक्सप्लोर करो, नेट पे जाके वीडियोस देखो किस तरह आईसीपी बनाया जाता है, किस तरह डिस्कवरी की जाती है, प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। एनीवेज, जब आप कॉल्स ले रहे हो, I was saying कि try to nurture them in the call and then आप उनको लिंक दो और क्लोज करो। नहीं करते हैं तो टेक द लाइक लीड ऑफ दैट कन्वर्सेशन और उस तरह उसको फिर क्लोज करो, ठीक है। यू आर द एक्सपर्ट एंड यू विल गाइड हिम कि आपको ये चाहिए, आपको ये नीड है, आपकी ये प्रॉब्लम है, एंड आई विल सॉल्व इट दैट वे। बहुत सारे टाइम्स पे विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट एनी मीटिंग भी आप ऑन चैट मतलब क्लोज कर लेती हो। आई हैव 2 क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया और मैं फेसबुक खोलती भी नहीं। आई रैंडमली ओपन एंड आई सॉ देयर आर 2 मैसेजेस एंड आई रिप्लाइड, और उसी वक्त हाथ के हाथ दे क्लोज विदाउट एनी मैसेज, विदाउट एनी क्या कहना चाहिए मीटिंग एंड यू नो ऑल दैट स्टफ। तो इट वुड बी इजी अगर आप ये सब चीजें सीखोगे क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ ऑन दैट क्वेश्चन। Yeah. Next, Adhika has asked it how to target the client at initial level. I think इस पर हमने काफी बात करी है कि initial level पे कैसे target करना है, इसी पर हम discussion कर रहे थे। एक बात आपने की कि हम लोग एक बात आपने की कि फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी मीटिंग बुक करते हैं, लेट्स से आपकी जो डील है वो क्लोज नहीं होती, सो व्हाट डू यू से कि आर देयर एनी मेजर्स दैट यू नीड टू टेक आफ्टर द मीटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मीटिंग के बाद डील क्लोज नहीं हुई और आपको एक मैसेज जो है वो क्लाइंट ने भेज दिया या फिर लेट्स से नहीं भेजा, समटाइम्स द क्लाइंट्स घोस्ट यू, तो आप कोई फॉलो अप मैसेज, लेट्स से आपको नहीं भेजा मैसेज, तो एक तो आपको फॉलो अप मैसेज करना चाहिए। दूसरा, अगर मैसेज उसने आपको भेज दिया है कि नो आई डोंट वांट टू वर्क विद यू और यू आर चार्जिंग टू हाई, तो नेगोशिएट करना चाहिए या आपको मैनिपुलेट करना चाहिए उसको। यू शुड ट्राई टू यू नो परसुएड हिम ऑफ योर स्किल्स। हाउ शुड यू रिस्पोंड टू अ नो? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब आप क्लाइंट नो बोल दिया, देयर आर 2 वेज। जब आप मीटिंग पे हो ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट आपके साथ काम करे ना करे, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसके साथ काम करूंगी कि नहीं करूंगी। मैं जब क्लाइंट पे होती हूँ, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज द क्लाइंट आई वांट टू वर्क विद, उसके बात करने के तरीके से, उसके एथिक्स से, उसकी रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट की, जो उसका क्या कहना चाहिए जो नीश है, जो भी आपको उसको काम कराना है, इज दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर आपको समझ लगता है कि ये मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देयर इज समथिंग कॉल्ड गट की जो आपकी फीलिंग आ रही है, इस पे ये लोग ना इग्नोर करते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आपकी गट की फीलिंग आ रही है कि यस आई वांट टू वर्क विद हिम और आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम, जो आपकी गट फीलिंग है उसको लेके आप फॉलो अप करो। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास एक क्लाइंट है, आई विल स्पीक विद हिम एंड आई विल गेस कि यार सो है, मे बी मैं इसको फॉलो अप भी करूंगी, मेरे बजट पे नहीं मानेगा, मैं कहूंगी कि रहने दो, मैं फॉलो अप नहीं करती। बट इफ देयर इज अ क्लाइंट मुझे बहुत ज्यादा ट्रैक करता है, इवन इफ बजट पे नहीं आ रहा, बट मुझे लगता है उसके साथ काम करने से मुझे ग्रोथ होती है, देयर आर समटाइम्स होता है उसकी इंडस्ट्री ऐसी होती है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसके मॉडल ऐसा होता है बिजनेस का कि आई वांट टू वर्क विद हिम।
कम पैसों में भी, तो व्हाट आई विल डेफिनेटली डू फॉलो अप। और इसको आप यू गाइस शुड नोट इट डाउन, जब आपके पास इस किस्म की आईसीपी हो, बजट को नहीं कंसीडर करना चाहिए। जब ग्रोथ की बात आए तो डू नॉट थिंक अबाउट मनी, ठीक है, एज अ बिगनर लेवल। मैंने भी सिर्फ मनी को छोड़ के सिर्फ ग्रोथ के लिए बहुत ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम किया। डू नॉट थिंक अबाउट मनी व्हेन इट्स कम टू ग्रोथ, सही है। तो जब आपको लगे कि ऐसा क्लाइंट मीटिंग पर है और क्लोज नहीं हुआ है, डेफिनेटली फॉलो। ये रूल अपने पास रखो कि फॉलो अंटिल यू गेट अ नो। जब तक आपको बोल दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, डू नॉट गिव अप, फॉलो अप करो 1 वीक बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, जब तक वो आपको नो ना बोले। फॉलो अप करने का तरीका बिल्कुल भी ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन मार्क बोल दो, हाय सर्कलिंग बैक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर डिस्कशन, इस तरीके का नहीं। चैट जीपीटी से जाओ और उसको प्रॉम्प्ट करो कि आई वांट टू क्लोज दिस क्लाइंट, दिस इज द डिस्कशन, what would be the next step in the prospecting, ठीक है। तो चैट जीपीटी आपको बताएगा कि आप प्रोस्पेक्टिंग के किस लेवल पे हो, एंड इट विल गिव यू 1 or 2 लाइन कि आप जो आप मैसेज भेजो ना उसके एंड में आप लिखो कि इफ यू आर नॉट रेडी या इफ इट्स नॉट द राइट टाइम, should I create you something, should I create a strategy for you, should I create something like, कुछ भी उसको फ्री भी दो, anything that will lead the conversation more, जो हाँ से उसके पास yes आए। अगर देखो yes नहीं बोलता तो एटलीस्ट वो ये कहे कि yes इन फ्यूचर मुझे जब भी नीड हुई आई विल कम बैक टू यू। तो या तो yes लो या तो ये वाला बात लो कि yes whenever I have the budget to work with you, या whenever I will be comfortable in working with you I will get back to you। like उसके दिमाग में अपनी पोजीशन बना लो, ठीक है, कि उसको लगे हाँ मेरे पास दिस आई हैव दिस गाय, जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी आई विल पुट ऑन दिस सर्विस, सही है। तो जस्ट नोट इट डाउन, डोंट गिव अप ऑन फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ नो। मेरे पास क्लाइंट है, आई फॉलो अप हिम आफ्टर 3 months, मैं बिल्कुल भूल गई थी, आई वाज जस्ट फॉलोइंग मैसेजेस एंड आई चेक के मैंने देखा ये मैसेज है, मैंने फॉलो अप किया एंड उससे रिप्लाई किया एंड आई क्लोज देम, बहुत मुश्किल से 3 महीने बाद, बट यस आई डिड। तो जब तक नो ना मिले फॉलो अप करना है, डोंट गिव अप ऑन फॉलो, दैट्स क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। पीपल जब मीटिंग एंड होती है और लाफ्स हो जाता है एंड देन दे डोंट लुक बैक, सो डोंट डू दैट। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहीं पे लूज करते हो, सही है। तो एटलीस्ट गेट अ नो, ताकि आप उसको अपनी प्रोस्पेक्टिंग से रिमूव कर दो उस क्लाइंट को। और मैं तो समटाइम्स मेंशन कर देती हूँ कि इफ यू आर नॉट लाइक अप यू शुड लाइक इन्फॉर्म मी, तो मैं आपको लाइक अपनी कन्वर्सेशन जो है ये क्लोज कर दूँ। तो वो इंस्टेंटली बता देते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड, या मैं नहीं हूँ अभी नहीं कर सकता, जो भी XYZ। सो दिस इज हाउ यू फॉलो अप। Okay, great. We have another question. यहाँ पे 2 questions हैं. Actually, Lareep का question है कि there are a lot of creators that talk about we should focus more on commenting, but LinkedIn is so messy. So how do we even decide which creators to follow and comment on? Exactly, LinkedIn पर आजकल everybody is an expert. Everybody has a personal brand. Everybody thinks they are expert. बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत साल काम नहीं भी किया, वो भी एक्सपर्ट बता रहे होते हैं, एंड देन दे क्लेम टू बी गाइडिंग अदर पीपल एज वेल। what do you say about this कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि how which creators do we want to look up to, or they are actually the real people जिनका एक अपना पर्सनल ब्रांड है, they're just not fluffing। फॉर इंस्टेंस कोई वीडियो एडिटिंग का बंदा है, अगर वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग करते कैसे हैं, ट्यूटोरियल्स बना के डाल रहा है, टीचिंग कर रहा है, वीडियो एडिटिंग करना सिखा रहा है, दैट मीन्स शेड है। क्यों? उसके पास अपने क्लाइंट्स नहीं है, ही इज क्लोजिंग पीपल लाइक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बोल रही थी कि बिगनर पे लेवल्स पे आपने अपने लोगों को सिखाने नहीं बैठ जाना, ठीक है। व्हेन देयर इज अ जेन्युइन पर्सन ही विल टेल यू हाउ टू डू इट राइट वे, अपनी क्लाइंट्स बताएगा, अपनी रिसोर्सेज दिखाएगा, अपना वर्क दिखाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट, ठीक है। लेट्स से आई एम डूइंग कॉपी राइटिंग, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ, देयर इज रेयरली, मुझे नहीं याद इफ आई हैव डन इट कि मैंने लोगों को बताया कॉपी राइटिंग करते कैसे, इवन दो पीपल नो कि आई एम अ कॉपी राइटर, ठीक है, कभी नहीं। तो देयर आर जो कंटेंट होता है ना, जो उसको रीड करोगे यू विल गेट टू नो कि यार इट्स सो डिफरेंट, देयर इज नो जेनेरिक, देयर इज नो एजुकेशन ऑन दैट स्किल, देयर इज नो बायस। जो फ्लफ होता है ना, बिल्कुल जो सब बात कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं, बेशक जितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, बेशक बिल्कुल आईफोन और मैकबुक के साथ उनकी पिक्चर दो, बेशक व्हाटएवर द स्टूडियो इज, अगर आपके उनके पास कुछ दिखाने को नहीं है या ट्रस्ट गेन करने के लिए नहीं है, ऑथेंटिसिटी का फैक्टर ही नहीं है, दे आर लाइक दे आर नॉट द राइट पर्सन। तो ये जैसे क्वेश्चन है व्हाट क्रिएटर्स आई शुड फॉलो, आई एम गोइंग टू टेक सम नेम्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो ऑन हाउ टू वर्क ऑन लिंक्डइन, ठीक है।
और जब आप उनको ऐड करोगे तो उनके नेटवर्क से आपको आपके स्किल्स के लोग मिल जाएंगे, सही है। नंबर आई विल शेयर दैट इन द चैट बॉक्स, लाइक बाय द एंड ऑफ द मीटिंग लिंक्स भी डाल दूंगी अगर टाइम मिला तो। जैसे वी हैव इथान गोल्डिंग, डीना, देयर इज जूलियस, ठीक है, मैट बार्कर, डीना टाउन, लिया टर्नर, ये कुछ 6-7 लोग हैं जिनको आई डू स्टडी। You can share their profiles with me and I'll be able to share with them. Yeah, definitely. I will share those links. I have around 20 to 25 people जिनको I do follow and excellent content. उनसे मैंने सीखा तो you will get the idea कि they are working on exceptional level. जिसके पास proof नहीं है ना, they are shady. सही है, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्रिएटर से मुतालिक टिप कि व्हाट क्रिएटर्स यू हैव टू फॉलो, जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी के क्रिएटर्स होते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट। देखो फॉर इंस्टेंस लिंक्डइन पे आओ, किसी के पास 80,000 फॉलोअर्स हैं एंड ऑल ही इज डूइंग इज पोस्टिंग पिक्चर्स एंड हियर इज हाउ यू क्लोज क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, और नीचे लिखे ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, पिक्चर बनाएं, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात लिखी हुई है, डू नॉट फॉलो देम, सही है। अगर कोई आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप, मेथड, फॉर्मूला बता रहा है, दैट्स द राइट पर्सन यू विल फॉलो, नॉट ओनली फॉर लिंक्डइन बल्कि अपनी स्किल के लिए भी। जो भी लेट्स से आप मार्केटिंग साइट पर हो, तो मार्केटिंग कोई आपको करना सिखा रहा है, द फॉर्मूला हाउ ही डज दैट, ठीक है। इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं, जो आगे चल रहे हैं, जिनसे आपको पता लगे, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जो आपको रिसोर्स दें कि इंडस्ट्री में ये चल रहा है रिगार्डिंग योर स्किल, रिगार्डिंग योर सर्विस, दैट्स द राइट पर्सन टू फॉलो, सही है। तो कट द नॉइज। आप लोग सब ना समझदार हो, यू गाइस हैव द आइडिया कि हम किस तरह, कौन सा इंसान जो है वो ऐसे ही बोल रहा है और ऐसे ही बस कंटेंट पोस्ट कर रहा है, फॉलोअर्स कम्युनिटी बिल्ड किए जा रहा है, जंक जमा कर रहा है, और कौन सा बंदा है जो एक्चुअली जो भी लिख रहा है उसके पीछे उसकी मेथड क्या है, पूरी आप लोगों को नहीं पता। बट जो मैं आपको लिंक दूंगी, यू विल गेट टू सी एंड यू विल सी कि एक एक पोस्ट जो लिखी हुई है उसके पीछे इतनी रिसर्च है, इतना एक डिसीजन हुआ हुआ है, ठीक है, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा खुद ही से क्वालिफाई किया करो क्रिएटर्स को, यूज योर अंडरस्टैंडिंग। कोई कुछ भी बोले इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उसको मान लो बिल्कुल ही। तो थोड़ा सा ना, पीपल मेक इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको अपने ऊपर इतनी कॉन्फिडेंस है तो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। परफेक्ट। ओके, यहाँ पे उसका और महविश का थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन ही है कि how do we find genuine clients on LinkedIn and how to convert leads into clients and how to avoid scams and how to find real leads. थोड़े overlapping questions हैं, तो मैंने sum up करके बता दिया है कि how to generate leads from LinkedIn, how to turn your leads into clients and how to avoid scams. For generating leads, there are two type of content you will produce. Sales driven content, उसमें आप अपनी case studies, अपना फीडबैक्स, ठीक है, या आपने किसी क्लाइंट पे काम किया आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। बिल्कुल जो बॉटम ऑफ फनल का कंटेंट होता है, यू विल पोस्ट दैट टू कन्वर्ट दैट लीड्स इनटू क्लाइंट्स। दूसरी टिप ये है कि फॉर इंस्टेंस मेरे क्लाइंट्स हैं मार्केटिंग, हेड ऑफ मार्केटिंग और B2C सेक्टर में, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगी रेडिट पे जाके, कोरा पे जाके, गूगल पे जाके, इवन चैट जीपीटी, इनकी पूछो बहुत स्पेसिफिक होकर कि हेड ऑफ मार्केटिंग को क्या मसले हो सकते हैं जो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर मैं सॉल्व कर सकती हूँ। इसको मैं लेट से उज़मा जो है सामने, उज़मा डज कैनवा क्राउजल, ठीक है, तो मैं पूछूंगी कि चैट जीपीटी से कि हेड ऑफ मार्केटिंग के कौन से मसले होते हैं जो मैं एज अ कैनवा डिजाइनर सॉल्व कर सकती हूँ। तो नीचे चैट जीपीटी आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और नंबर ऑफ क्वेरीज देगा जो उनको प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो यू विल स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट दिस, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग दोस, एक एक आप उठा लो और एक एक के ऊपर आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करो। बट पोस्ट अबाउट योरसेल्फ, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना, सी दोस प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू विल सॉल्व इट, so then you will post that. Exactly. So that will turn out to be a great post. So just make that sure. Perfect. That sums up Taiba. Okay, so if you want to share any further resources from them, you can share. And if anybody has any questions, so let's get to the questions. Let's do an open mic. Let's everybody talk. Let's get interactive. Yeah, I will wait कि कोई इस तरह क्वेश्चन पूछे तो I can answer them.
Yeah, yes, you guys can unmute your mics. You guys can show your experiences, ask anything, and if you guys want any guidance to get into your LinkedIn profiles, या तैयबा की LinkedIn profile पे कुछ चीज है जो आपको जिसके बारे में क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. Today she is with us. Next time the session with her will be paid, guys. Yes, Sana. मैं लिंक्डइन शेयर कर देती हूँ. नहीं बोला, मैं तैयबा का लिंक्डइन शेयर कर देती हूँ. सना, you can unmute your mic and ask your question. Can you hear me? Yes, we can hear you. Assalamualaikum. Alaikum Taiba, I want to ask, is it necessary to post pictures? Because personally, I don't want to. I just want to create content. So if I avoid posting pictures, will it hurt my brand or not? Or is it a prerequisite? It's not necessary. Okay, it's not necessary. There are tons of profiles. I will send you. मैं अपने जो है ना लिंक अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को कुछ प्रोफाइल दिखाती हूँ 100% रिटन. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट विल नॉट हर्ट योर ब्रांड. ठीक है, द रीजन पीपल शो लाइक पोस्ट पिक्चर्स इज टू गेट एंगेजमेंट इंप्रेशन. इस बगैर इसकी भी अगर आपका रिटर्न फॉर्मेट भी बहुत अच्छा है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. अगर आप मेरी बात करो, बहुत ज्यादा टाइम हुआ है मैंने अपनी पिक्चर्स पोस्ट किए हैं. क्यों? क्योंकि मुझे एंगेजमेंट चाहिए होती है या मुझे वो लगता है कि इट्स नेसेसरी. बट 100% इस तरह मैंने अभी भी कल परसों मैं यही सोच रही थी, जो मेरी रिटर्न पोस्ट है दे परफॉर्म ऑलवेज बेटर. वो हमेशा मुझे रिजल्ट लेकर आती है, हमेशा जो उनका सीटी होता है वो कन्वर्ट करता है. अगर मैं उनको कंपेयर करूँ जो मेरी पिक्चर्स पोस्ट की होती है, तो अगर मैं पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ तो देर समटाइम्स सम स्टोरी टेलिंग या क्या, आई डोंट नो व्हाट, बट मेरे लिए पिक्चर्स कभी भी वर्क नहीं करती. इवन दो आई ट्राई पोस्टिंग, मैंने स्टिल पोस्ट करके देखा है कि क्या मैं टेस्ट कर रही हूँ, बट मेरे लिए पिक्चर्स काम नहीं करती. बट देयर आर पीपल जिनके लिए पिक्चर्स काम करती हैं. तो इट्स नॉट कि आप पिक्चर पोस्ट नहीं करोगे तो आपका ब्रांड हेड होगा, ऐसा नहीं है. यू आर फ्री टू टेस्ट वॉट एवर फॉर्मेट. अगर आप वीडियोज में कंफर्टेबल हो, पिक्चर्स में नहीं, तो आप वीडियोस पोस्ट कर लो. अगर आप टेक्स्ट कर सकते हो टेक्स्ट कर लो, नो प्रॉब्लम. Perfect. Thank you, Taiba. Any other questions from anyone else? अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो डू टेल मी. Yes, we can see your screen, Taiba. There is this lady Dina. I'm really inspired by her. I think many of you will many of you are following her. पहली बात तो इनकी इमेजेस नहीं है इनकी प्रोफाइल पे. The last time I saw her picture was her wedding picture. ठीक है, शी इज टोटली रिटन, टोटली सही है. अच्छा, आप इनकी एंगेजमेंट में देखो, ऐसी कोई खास नहीं है. बट आई वुड 100% से एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि शी इज द पायोनियर इन मार्केटिंग एंड मोनेटाइजेशन कॉपी राइटिंग. शी इज द पायोनियर. जितनी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉपी राइटर्स आप सीख रहे हो, दे आर नोबडी व्हेन इट कम्स टू हर. मुझे क्यों पता है? क्योंकि शी रन्स एन एजेंसी एंड शी हैज अ होल बिजनेस टू डू कॉपीराइटिंग फॉर बिगेस्ट ब्रांड्स. ठीक है, एंड आई हैव दी न्यूज लेटर्स एंड ईमेल्स जो मैंने सब्सक्राइब किए हैं. तो जो उनकी यहाँ पे नॉलेज है, जो उसकी बिल्कुल क्रीम है, वो उनकी न्यूज लेटर्स में. सो और मुझे इनकी राइटिंग स्टाइल वैसे ही बहुत, जब मैं बिगनर थी तो मुझे पसंद आया था. तो यू विल गेट टू सी कि इन्होंने किस तरह का लिखा है कंटेंट. ये वो कंटेंट है जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन था, लीड जनरेशन का कंटेंट जो होता है, ये वो कंटेंट है. आप देखना कि इनकी राइटिंग कैसी है, स्टेटमेंट कैसी है, हर इसको क्लोज कैसे करती है. और ये बिल्कुल वो जो हम पढ़े, हुक्स बनाओ, टेम्पलेट बनाओ, पॉइंटर्स में लिखो और सीटी बनाओ, पता नहीं क्या किया. शी इज फॉलोइंग नथिंग. और आप मेरी प्रोफाइल में जाओ, यू विल सी सेम. मुझे मेरी प्रोफाइल पे कोई सा हुक्स नहीं होते, बिल्कुल नंबर हो, ये हो वो, नथिंग. ठीक है, यू आर द ह्यूमन एंड एट द एंड ऑफ द डे योर गोल इज टू क्लोज अ ह्यूमन क्लाइंट. ठीक है, तो नो मैटर वट एवर, देखो कुछ टिप्स होती हैं. लोगों ने टिप्स को ना बिल्कुल डेफिनेट बना दिया कि ऐसे ही करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. टिप्स को टिप्स ही रखो कि यस इट कुड बेनिफिट मी. अगर बेनिफिट नहीं करता, इट्स नो प्रॉब्लम, यू हैव टू डू योर ओन थिंग. सही है, सो फॉलो हर और इनकी एक्सप्लोर करो. इट्स नॉट जस्ट फॉलो करो कंटेंट को, इसकी इनकी पोस्ट को ना समझो जाके, क्रॉस चेक करो कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों लिखा है ये. यू विल गेट टू नो. पूरी स्ट्रेटजी के साथ जो है ना पोस्टिंग करी होती है. देयर इज दिस पर्सन जूलियस. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरे ख्याल में
ये सारी बातें उसी वक्त फ्रूटफुल होंगी कि जब हमें कम्युनिकेशन स्किल आएगी. We should give the same importance to communication skill, just like graphic skills or other skills. And when we cannot tell us about ourselves, about our skills, तो ये सब बेकार होगा. What guidance will you give about this? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था एक वर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यूट्यूब पे जाके ना टिप्स देखो कि क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है. व्हेन आई डू कम्युनिकेट, मेरा 100% गोल होता है कि आई शो देम कि व्हाट आई एम इन पर्सन. ठीक है, मैं मेरी पर्सनैलिटी कैसी है. इफ आई एम वेरी फन टू वर्क विद, या मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, या मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ. ठीक है, और मैं क्लाइंट को भी समझती हूँ. सही है. तो एक तो पहली बात ये चेक करो क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म पे काम करना है, अगर आप बिजनेस लेवल पे काम करते हो, कम्युनिकेशन का है कि यार चैट जीपीटी से जाओ, और बात करने का ना हर बात करने का तरीका होता है. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लर्न होगा कि हाउ डू यू कम्युनिकेट. देयर इज दिस क्लाइंट, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए हायर किया, बट 3-4 महीने बाद ही सेड कि ताइबा देयर आर 2 लैंडिंग पेजेस, आप उनको ना कॉपीराइट कर लो या उनको एडिट कर लो. तो मेरे दिमाग में फौरन से आया कि यार आई एम नॉट द कॉपीराइटर, और मैं उनका कंटेंट मैनेजर भी नहीं हूँ. मेरा काम सोशल मीडिया का काम है और मेरे काम कॉपीराइटिंग नहीं है. अगर उनको मुझसे कॉपीराइटिंग करानी है, दे हैव टू पे मी एक्स्ट्रा फॉर द कॉपीराइटिंग. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अच्छा 6-7 महीने से हम काम कर रहे हैं और ही पेज मी गुड, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने करके दे दिया. जब मैंने उनकी लैंडिंग पेज खोले तो इट वाज होल चैट जीपीटी, यानी कि मुझे खुद से लिखना पड़ा. मैंने उनको लिख के दे दिया एक आंख. मुझे पता था कि अभी मैं लिख के दे रही हूँ, मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद भी आई नो दैट कि मैं अभी अगर मैंने उनको लिख कर दे दिया, ये मुझे दोबारा कुछ और देंगे काम करने के लिए, क्योंकि मैंने उनकी पहली बात मानी. तो मुझे वहीं पे बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए थी. आई डिड नॉट डू दैट. अब उसका रिजल्ट क्या होता है आई विल टेल यू. तो 2 हफ्ते बाद दोबारा से ही सेट कि हम एक ईमेल भेज रहे हैं, कैन यू प्लीज चेक इट. एट दैट टाइम मैं चैट जीपीटी पे गई, मैंने उसको पूरा बताया, और चैट जीपीटी ने मुझे लिख कर दिया उनको मेंशन करो. ठीक है, कि क्लियर कम्युनिकेट करो कि आई एम मेरा ये रोल है. ठीक है, एंड इफ एंड आई एम वेरी एक्सपर्ट इन कॉपीराइटिंग एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी, बट आपको फॉर दैट मैं आपको आई विल हैव टू कंसीडर इट इज एज एन एक्स्ट्रा या एड ऑन्स. ठीक है, मतलब मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क से बिल्कुल अलग है ये. मतलब कम्युनिकेट करने का उसने मुझे तरीका बताया विदाउट साउंडिंग लाइक बहुत ज्यादा रूड ना लगूं मैं उनको, और बहुत ज्यादा मैं उनको भी बुरा ना लगे. वेरी प्रोफेशनल मैसेज. ठीक है, तो कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट इस तरीके के तरीके पर. अदर देन दैट नॉर्मली भी आप जब कन्वर्सेशन पे कर रहे हो आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए. मैंने एक दफा कंसल्टेशन ली थी एंड एट दैट टाइम आई शो दैट गर्ल अ प्रोफाइल कि वो कुछ भी नहीं है, उनकी स्किल कुछ भी नहीं है. शी इज प्रेग्नेंट, बट द लेवल शी कम्युनिकेट, द लेवल शी फॉलोज द प्रोफेशनलिज्म जो उसके अंदर है, इट मेक्स हर 10% 10x मोर पावरफुल देन द रेस्ट ऑफ अस. क्यों? क्योंकि शी इज एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, अपनी बात मनवाने में, अपनी बात रखने में. इवन इस स्टेज पे भी आके आफ्टर 4 years मुझे अभी भी लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज है. मैं नहीं कर पाती अपनी जो क्लियर मेरी थॉट्स है, मैं उनको नहीं टेबल पे रख पाती. तो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, 3-4 चीजें हैं. नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 निगोशिएशन करना आना चाहिए आपको, अपने पैसे अपनी स्केलिंग वगैरह करने आना चाहिए. नंबर 3 आपके पेमेंट गेटवेज. ठीक है, अभी से जब आप स्टार्ट करो अपने बैंकिंग, पेपाल, पेयोनियर, व्हाटएवर यू यूज, उसको अभी के हाथ के हाथ उसको सॉर्ट आउट रखो. सही है. नंबर 4 जो है आपके पास आपकी पोर्टफोलियो. ठीक है, आप कैसे उसको शो करते हो, क्या आप के पास क्या मतलब केस स्टडीज वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कुछ 4-5 चीजें मतलब स्किल सीखना. व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग, जो भी आपकी सर्विस है, इट्स नॉट इनफ. सही है, अगर आपको 10x मोर चार्ज करना है, या इफ यू वांट टू स्केल, आपके पास अलग से आपके पास बकेट में और एग्स होने चाहिए, और वो एग्स यही है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, नेगोशिएशन करना आना चाहिए, आपके पास ऑफर्स होने चाहिए, आपके पास केस स्टडीज होना चाहिए, एंड यू नो ऑल दैट स्टफ. सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप कि मैंने उसको सही से आंसर किया हो. Definitely, and I think हमारी जो generation, specifically our wedding generation, the Gen Z, they're quite
good at communication. I was going through some posts on LinkedIn, and there I saw some posts from some CEOs. They were Dubai-based companies, Abu Dhabi-based and Dubai-based companies, और उसमें उन्होंने बताया कि सेल्स में और मार्केटिंग में यूजुअली उनको बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत एनर्जेटिक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के रोल्स में, मार्केटिंग में, इन चीजों में. तो उन्होंने दे शेयर्ड दिस थिंग दैट दे डिड नॉट रिसीव अ सीवी फ्रॉम अ गर्ल, बट इंस्टेड दे रिसीव्ड अ वीडियो लिंक फ्रॉम अ गर्ल. शी वाज अ जेन जी, और पूरी वीडियो में शी जस्ट सोल्ड हरसेल्फ कि this is me, these are my skills, and I see your problem, and this is how I'm going to solve it, and I can do my best, and I can show you results in this time, and let's work together and see if this works for you. And they told that she has been my best hire, and I have not seen her CV till now. तो बिल्कुल कम्युनिकेशन जो है, अगर बाज लोग जो हैं उनकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव होती है कि इफेक्टिव से मुराद ये भी है कि आपकी जो टोन है और जो आपकी वर्डिंग है वो बहुत अप्रोप्रिएट है. उसके अलावा बाज़ दफा ये भी होता है आपके लफ्जों में असर बहुत होता है. अब नेचुरली मैनिपुलेटिव आपकी टोन होती है, सो यू आर जस्ट एबल टू कन्विंस अदर पर्सन. आपको काम नहीं भी आता, यू कन्विंस कि मुझे आता है, तो यू ऑल्सो गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट. So yes, communication is definitely very important. Taiba, you summed it up really well. If anybody has any other questions, please ask your questions. मैम, मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन के लिए, हाँ, एक तो है ना चैट जीपीटी से ले लिया हमने और जवाब दे दिया, या कोई मैसेजिंग है, चैटिंग कर रहे हैं हम, उसमें मेरे ख्याल में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हमें जब तक हम फेस टू फेस किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, उसके साथ बात नहीं कर सकते. तो इसके लिए एज अ बिगिनर जो हम बिगिनर्स हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो फिर हम कौन सा कोई ऐसी कम्युनिटी, कोई ऐसा फोरम कि जहाँ पर हम ज्वाइन करें, उनके साथ उनकी बातें सुने, उनके साथ कन्वर्सेट करें और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो. कोई आप इस तरह कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो बताएं प्लीज. सी, एज अ बिगनर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप मीटिंग करो और मतलब इस तरह की फेस टू फेस बात करो. इवन आफ्टर 4 years मुझे अभी भी मैं अवॉइड करती हूँ कि कुछ यूजलेस मीटिंग, मतलब आई एम नॉट दैट कॉल पर्सन. कुछ लोग होते हैं ना, उनसे बात नहीं होती फेस टू फेस, तो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, एंड आई एम 100% श्योर कि मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस. इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बात ही नहीं की जाती भाई, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. बट अगर आपको फिर भी जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो मीटिंग करनी है, तो फॉर दैट सबसे अच्छा है कि टेक एज मैनी एज यू कैन. मैंने जब अपनी कंसल्टेशन लेना स्टार्ट की थी, आई वाज वेरी शाय और मुझे बात करनी नहीं आती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं. बट अब ले लेके अब तो ऐसा हो गया कि बस 10 मिनट्स पहले बोला कि मीटिंग कर रहे हैं, हाँ भाई कर लो, आगे बात कर ली, सही है. तो विदाउट प्रैक्टिस देयर आर 2 थिंग्स जो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता, राइटिंग और कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग भी जो आपको टिप्स देते हैं वो क्या कहते हैं, शीशे के सामने जाके बोलना शुरू कर दें. तो इसमें फोरम ज्वाइन करके क्या वो भी आपको बात ही करना सिखाएंगे. Actually, there are, yeah, sorry to interrupt you, Taiba, but sir, now we also do have audio AI tools. तो अगर आप सर्च करेंगे आपको audio AI tools मिल जाएंगी. आप उनको बिल्कुल, आप चैट जीपीटी का भी, अगर आपके पास कुछ फ्यू टोकन हर एक के पास होते हैं, तो आप उसको भी अपनी ऑडियो दे सकते हैं. हाँ, आई एम नॉट श्योर कि वो आपको ऑडियो जनरेट करके देगा या नहीं, लेकिन आप ऑडियो एआई टूल्स ढूंढ सकते हैं. ठीक है. और जो अगर आपने इस तरह किसी बंदे की तरह बात करनी हो ना, कि आपके पास सामने एक इंसान है और आप चाहते हैं कि मैं उस इंसान के तौर पर ऐसे प्रैक्टिस कर सकूं कि मेरे सामने ये इंसान है, तो आपने अपने एआई को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ये देनी होती है कि यू आर अ क्लाइंट एंड आई एम डीलिंग यू एज you're a client and I'm dealing you as a freelancer, and I'm convincing you, and I'm negotiating with you, and let's say you are a tough client, तो टॉक टू मी लाइक दैट. वो आपसे ऑडियो में इस तरीके से बात करेगा एज अ मीटिंग, और आप उसको ऑडियो में वैसे ही जवाब देंगे. तो इस तरह के काफी एआई टूल्स हैं, आप उनको लाजमी सर्च करें और आप उनको ये प्रॉम्प्ट इस तरह की कोई दे के अगर आप उनसे बात करेंगे, वो आपसे उसी तरह वही पर्सनैलिटी इख्तियार करके बात करते हैं. इस तरह आइल्स की और हर तरह की चीज की ऐसी एआई टूल्स मौजूद हैं, और अगर नहीं है तो आप कस्टम जो है अपनी जो भी जनरलाइज टूल मौजूद है चैट जीपीटी जैसी, उसको भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर. ठीक है, तो ये आप लाजमी इस चीज को देखें. यहाँ पे तैयबा लारीब हदीका का एक क्वेश्चन है. लारीब का क्वेश्चन है कि अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहे, तो फिर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, देन व्हाट इज द बेस्ट वे? कंपनी जो है बेस्ट जो अपने पास एनडीएस रखवाती हैं
कि हमारा काम शेयर नहीं करें। अगर उन्होंने नहीं किया है, अगर आपने साइन नहीं किया किसी ऐसी चीज पे, तो आप उनसे कम्युनिकेट करो कि इज दिस ओके कि मैं इसको शेयर करूं। जब तक क्लाइंट से पूछोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके इन केस उन्होंने कहा नहीं आपको अलाउ नहीं है, तो व्हाट यू डू, आपने जो भी काम किया है तो उनको आप मॉक पोर्टफोलियो बनाओ। फॉर इंस्टेंस मैंने काम किया है एक कंपनी अब टेक्सोल, सही है। अब उन्होंने मुझे बोला है कि आप मेरी कंपनी का नाम यूज नहीं करोगी, तो आई विल क्रिएट सम रैंडम नेम, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, या कुछ भी अपना तरीके से बना लूंगी, कोई भी नेम। द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि आप सेम काम जो आपने किया है यू कैन टॉक अबाउट इट, बस जो आपकी रैंडम जो डिटेल्स हैं, जो क्लाइंट का नाम हो गया, डिटेल्स हो गई क्लाइंट्स का, मतलब क्रेडेंशियल्स होते हैं जो, उनको आप हाइड करके या उनको आप कवर करके, बट जो आपका पार्ट है, जो आपका इनपुट है, दैट विल अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, आप उसको कर सकते हैं इस तरह उसके करके। अलावा या परफेक्ट, एंड उसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो में अपनी जो आपने नंबर से वैल्यू क्रिएट की इन कंपनी, वो आप टेक्सचुअल वे में बता के अपने साइड प्रोजेक्ट्स को भी शोकेस कर सकती हैं, फिर वर्किंग ऑन सम साइड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो वो आपका एक एडेड ग्रिड शो हो जाता है वहां पे कि दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ ग्रिड एंड इज वर्किंग। हदीका का यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ आई एम प्लानिंग टू वर्क एज फ्रीलांस मेडिकल राइटर, who would be my target audience specifically, and if I don't have any client currently, then I should post about random medical topic, or I should do something else? एज अ मेडिकल यू हैव रिसर्चर्स जो थीसिस लिखते हैं, जो ये आपके पास वेबसाइट्स हैं जो आपके पास ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, मेडिकल उनको नीड होती है मेडिकल राइटर्स की। ठीक है। डॉक्टर्स, अदर देन दैट जो क्लिनिक्स होती हैं जिनकी, तो उनकी वेबसाइट्स, जिनकी आप क्लिनिक्स होती हैं उनकी वेबसाइट्स होती हैं, फ्रॉम देम दे गेट लोकल बुकिंग्स। ठीक है। कंसल्टेशन, जैसे आपको अगर याद हो, बहुत सारे हमारे पास स्किन एस्थेटिशियंस जो होते हैं, इनकी वेबसाइट्स होती हैं। सो उनको जरूरत होती है लैंडिंग पेजेस की, ब्लॉग्स की और ऑल दैट स्टफ, तो आपकी वो है। रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट हो गए, क्लिनिक्स में हो गए, स्किन में डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑल दैट स्टफ, या फिर न्यूट्रिशन साइड पे आप चले जाओ। असल में मेडिकल बहुत ज्यादा वास्ट निश है, तो आप, आई हैव नो आइडिया कि आप कौन सी मेडिकल की बात कर रहे हो। तो अगर आप पहले तो आप इसको वो कर लें कि आपकी नीश क्या है, मतलब माइक्रो निश क्या? या नीश क्या है, नीश के ऊपर फिर आप क्लाइंट ढूंढोगे, नीश के ऊपर आप बात करोगे। जैसे आप टॉपिक की बात कर रही हैं, तो अगर आप न्यूट्रिशन, देयर आर पीपल हु आर फिजिकल थेरेपिस्ट, देयर आर पीपल हु आर न्यूट्रिशनिस्ट, तो फिर वो न्यूट्रिशन के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, फिजिकल थेरेपी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट दी क्लैरिफिकेशन ऑन दी आईसीपी कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, कौन सी मेडिकल इंडस्ट्री में। Perfect. I hope that answers your question. जिसने क्वेश्चन पूछा था हदीका, I hope that answers your question. ठीक है, if anybody has any other questions, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं regarding anything. मावरा, ये जो लिंक्डइन पे ये कैसे, मतलब मेरे पास शो होगा ये इवेंट इवेंट या है? आपको यस। एक्सवेव के पेज पे शो हो जाएगा? ओके, ऑलराइट। आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस तरीके से। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाइम पीरियड इसमें ओके। फार्मास्यूटिकल राइटिंग में आप मैम, फार्मेसीज को टारगेट मैं करेंगे। ये तो आपका आपका आंसर आपके सवाल में ही है बेसिकली। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि लिंक्डइन पे सिर्फ हम अपने यानी स्किल रिलेटेड पोस्टें जो हैं सिर्फ वही कर सकते हैं? जर्नल पोस्ट अगर कभी कोई करना चाहे तो उससे कोई उसके लिए क्या फेसबुक प्रोसेस होती है? है। ये सही बात। जी मुझे आप क्या कह रहे क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनका। असल में उनका क्वेश्चन ये है कि लेट्स से लिंक्डइन पर अगर आपने सिर्फ अपनी निश से रिलेटेड, अपनी स्किल सेट से रिलेटेड ही पोस्ट कर सकते हैं, या आप कुछ जनरल टॉपिक के बारे में भी पोस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा है फेसबुक इंस्टाग्राम पे जनरल टॉपिक्स भी होते हैं ना, या कुछ लोग तो लिंक्डइन पर भी करते हैं। या यू कैन टॉक अबाउट जनरल टॉपिक्स, बट आपको ये देखो हर चीज का एक ना डिकोरम होता है, तो यू हैव टू फॉलो दैट डिकोरम।
इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ, यू विल सी कि आई टॉक अबाउट सम एक्सपीरियंसेस। अगर मैं बाहर नेटवर्क कर रही हूँ किसी से, किसी इवेंट पे गई हूँ, समथिंग हैपेंड, तो आई टॉक अबाउट इट। या भी जैसे आई हैव सम पेट्स और वो कोई इशू आया मेरे पेरेंट्स में, तो आई टॉक अबाउट इट। तो यस, यू कैन डू रैंडम स्टफ, लेकिन उसका पर्पस है क्योंकि मेरी ऑडियंस ऐसी है, तो आपको भी थोड़ा देखना है कि मेरी ऑडियंस इसको लाइक करेगी नहीं करेगी, तो यू कैन डू दैट। Yeah, because you are लिंक्डइन पे काम करने के लिए कोई fix नहीं है, तो इट्स फ्री। आपका कंटेंट जो दैट इवेंचुअली लीड्स टू योर निश, क्योंकि वो आपकी राइटिंग स्किल्स को शोकेस कर रहा होता है। तो इट आल्सो तो आपके कंटेंट पे तो ये मतलब इट मेक्स सेंस कि आप स्टोरी अगर वहाँ पे इफ यू शेयरिंग समथिंग, सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट कि आप किस स्किल सेट पे बात कर रहे हैं और आप किस लेवल पर हैं। बहुत बिगिनर प्रोफाइल्स जब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे और मतलब ऐसी मीम्स जो अगर आप कर रहे हैं जो जिसके ऊपर डिबेट स्टार्ट हो सकती है, तो आई थिंक उससे अवॉइड करना चाहिए। से ट्रैफिक तो जनरेट हो जाती है, लेकिन आपकी प्रोफाइल के आगे का ना लोगों के नजरों में हैलो बन जाता है कि इस प्रोफाइल ने ये पोस्ट किया था, या उसके ऊपर वो एक नजरिया बन जाता है आप कह रहे हैं। तो बेहतर होता है कि पहले आप प्रोफाइल अपनी ऑप्टिमाइज कर लें, एक आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए, तो आप उसके लिहाज से फिर थोड़ी जनरल पोस्ट भी कर लें। अगर आप तैयबा की प्रोफाइल देखिए, मैंने शेयर की हुई है, तैयबा की प्रोफाइल में देयर आर लॉट ऑफ फीचर्ड पोस्ट, देयर इज अ वेरी गुड कैराउजल बैक कवर पे। कैराउजल इज वेरी कूल तैयबा, I really like it. They're very nice. And I think a lot of designers here, अगर आप में से काफी लोग यहाँ पर डिजाइनर्स हैं, तो आप तैयबा का एक carousel देख सकते हैं। हालांकि ये she is a writer, लेकिन I think डिजाइनर्स की प्रोफाइल जो है वो इस तरह की थोड़ी फैंसी चीजें उसमें होनी चाहिए। LinkedIn पर they should showcase कि ये डिजाइनर की प्रोफाइल है। तो इसी तरह जैसे तैयबा ने फीचर्ड पोस्ट ऐड किए हुए हैं, तो ये कुछ ऑप्टिमाइज प्रोफाइल्स को you guys should go and look and मेक यूज ऑफ देम। किसी भी निश की आप ऑप्टिमाइज प्रोफाइल देख के अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने स्किल सेट की प्रोफाइल को देख के आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तैयबा की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर की हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे ये फ्री कंसल्टेशन, उसके बारे में भी शी हैज मेड अ रीसेंट पोस्ट एंड एट द एंड शी हैज कनेक्टेड दैट टू दिस सेशन। So that's how you make your post, and at the end you connect that to yourself. So it's your account and you have to showcase yourself. So the post is really great. यहाँ पे लारीब का क्वेश्चन है, तैयबा के जिन कनेक्शन के फॉलोअर्स लो हैं, तो क्या हम उन पर कमेंट करें या सब हाई फॉलोअर्स वालों पर ही कमेंटिंग करनी चाहिए? नहीं, जिनके फॉलोअर्स ना उनको भी करो, इसमें कोई वो नहीं है। आपकी देखो कमेंट, दो चीजें हैं, कनेक्शन है कौन, मतलब किस पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो और आप क्या कमेंट कर रहे हैं, सही है। तो क्वालिटी वर्क्स ऑन बोथ साइड्स। तो बजाय कि आप फॉलोअर्स है उनकी वो देखो क्रेडिबिलिटी कि आप कितना उनकी लाइक नंबर्स पे जाओ, आप उनकी क्वालिटी चेक करो कि पोस्ट किया है और आपकी कमेंट किया है। तो इट्स मैंने बहुत सारे टाइम्स से कमेंट्स किए हैं, इंडियंस होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, आई डू कमेंट्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोस्ट अच्छी लाइक देखो, हम कंसीडर इज टेक लिंक्डइन एज नॉर्मल सोशल मीडिया, जैसे हम इंस्टाग्राम पे होते हैं कि हम बिल्कुल जो बेस्ट फॉलोअर्स जिसके होते हैं हम उसी को लाइक करते हैं। वी लाइक सो मेनी रील्स, फेसबुक पे हम बहुत सारी पोस्ट लाइक करते हैं, तो इट्स सेम एज लिंक्डइन। एट द एंड ऑफ द डे ये है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ना, so don't make it too much complicated. Perfect. So I think that was an insightful session. I hope कि आप लोग we have made an impact और हमने कुछ आपके काफी अच्छे questions जो हैं वो आंसर कर दिए हैं. Thank you so much Taiba for joining. Thank you so much for gracing this occasion. Thank you so much for sharing so much insights about the LinkedIn brand management. और जो links लारी वो मेरे साथ share करेंगे, I will share them with you guys. तो आप उनके साथ बिल्कुल share हो जाएंगे. Taiba, it will be very kind of you अगर आप जो आपने social media profiles mention की थी 15 से 20 उनके links या name आप मेरे साथ share कर दें, तो that will be very helpful for these guys. All right. I will send those link on your LinkedIn message. Perfect. That's perfect. That works perfect. All right. So thank you so much everyone for joining. Thank you so much Taiba for gracing the event. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.